Okay, good morning again. Let's start with the things. Yesterday we were talking about SQL. How do we install it? We have done the options. How do we install? And then some basic commands we have practices that how do we start with that. Fine. So let's continue with the things today. I'll just move on to the screen. Okay, this create table command we have done yesterday. The way to write was we just write create table in the beginning. Create table आप capital small दोनों में लिख सकते हो. There should be space between create and table. Then we need to specify one create a table name here. Bracket open. First column name, its data type and the constraint value. Then second column name, its data type, constraint value. Data types we discussed yesterday that what kind of data we can enter. Right, so likewise we have to keep on adding columns and constraint values will discuss afterwards. Constraints क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, वो हम इसके बाद करेंगे. Then we close the bracket and semicolon is added. We can also use where somewhere. So in fact create table command में हमारे where clause नहीं लगाएंगे हम कहीं पे. It's not in our curriculum, so not to use it. So we'll simply start with this and end with this semicolon. This is one example. As you can see on the top, we have a table and the name of the table is teacher, right? Name of the table is teacher. And then columns, we have teacher ID, first name, last name, gender, salary, date of birth, department number. ये सारे columns बनाने हैं. तो हम command क्या लिखेंगे? Create table teacher. Bracket open किया. इनमें space देना है. Create table के बीच में space, teacher से पहले space. First column name was teacher ID. And what kind of value we can enter? Integer. So we'll put comma. Second column name, first underscore name. Remember the names cannot have spaces, so we have to put underscore in place of spaces here. Right? Or either you can simply join the words. First name में space छोड़ दो. And it should have a data type varchar. Char और varchar दोनों दे सकते हैं. पिछले कल हमने किया था varchar और char में फर्क क्या है. For characters, for alphabets we use char और varchar. और char और varchar में फर्क क्या है? Char is a fixed length variable, a fixed length character, and varchar is variable length character. That means fixed length का मतलब होता है कि उसमें जो साइज दिया है हमेशा वही साइज काउंट होगा. और varchar में डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू टू एंटर. वैल्यू अगर मान लो 20 हमने साइज दे दिया यहाँ पे varchar इस कॉलम को, इस कॉलम में जो भी वैल्यू होगी कि मैक्सिमम रेंज 20 है, बाकी इससे छोटा नंबर भी डाल सकते हैं, छोटे वर्ड्स भी लिख सकते हो. और जो साइज होगा वो जितने कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं उतना होगा. जैसे फर्स्ट नेम गौरव है, गौरव में देयर आर 6 अल्फाबेट्स, साइज विल बी 6. बट इन केस यू यूज char here in place of varchar, आप यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम char ब्रैकेट में 20 लिखते हो तो साइज हमेशा 20 ही काउंट होगा. राइट. Next column, comma लगाया. Next column is last underscore name, then data type varchar, size maximum 20, bracket close, comma. Next column is gender. Gender में अगर आपको alphabets देने हैं या if you want to write full male female, so for that we need more space. यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर का स्पेस दिया है. That means इसमें F या M भी आएगा. Right. Similarly, salary is there. नेक्स्ट कॉलम, सैलरी में नंबर्स आएंगे बट सैलरी जो है वो डेसिमल्स में भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इंटीजर नहीं लिया, यहाँ पे डेसिमल लिया. और डेसिमल की स्पेसिफिकेशन दे दी है कि 10 डिजिट तक का नंबर डाला जा सके और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ सके. This 10,2 means the maximum number of digits can be 10 and this 2 means after decimal we can have 2 digits. Then comma, next column is date of birth.
और इसमें डेट ऑफ बर्थ में डेट आएगी तो इसका डेटा टाइप डेट है, कॉमा डिपार्टमेंट नंबर एंड दैट इज इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर में साइज नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, मैक्सिमम साइज रेंज नहीं दी है, तो दैट मीन्स इट विल पिक अप डिफॉल्ट साइज, द डिफॉल्ट साइज इज 11। 11 डिजिट्स का नंबर यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है। Then we put closing bracket and we put semicolon to end up this particular command, right? So your table will be created. So this we have covered yesterday: char, varchar, date, integer and decimals. These are the different data types that we can use. Now what I have done is I have taken some screenshot of all the commands that I have practices. तो मैंने वो सबकी स्क्रीनशॉट यहाँ डाली है ताकि आप लोग समझ सको कैसे लिखना है। कल हमने किया था क्रिएट, कल हमने किया था शो डेटाबेसेस। पहले शो डेटाबेसेस में इट विल शो द लिस्ट ऑफ ऑल द डेटाबेसेस एज यू सी। शो डेटाबेसेस लिखा तो जो जो डेटाबेसेस हैं बने हुए इस सिस्टम में उनकी लिस्ट बन जाएगी। अगर आपको नया डेटाबेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का कोई भी नाम, जैसे स्कूल लिख दिया, प्रेस एंटर, क्वेरी ओके लिखा है, दैट मीन्स योर डेटाबेस इज क्रिएटेड नाउ। इफ यू वांट टू रिमूव द डेटाबेस, डिलीट करना है कोई डेटाबेस, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ड्रॉप स्पेस डेटाबेस स्पेस स्कूल, स्कूल नाम से जो डेटाबेस बनाया था वो डिलीट हो जाएगा। तो रिमेंबर ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डेटाबेस। फाइन। ऐसे ही टेबल डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। फाइन। तो व्हेन यू शो डेटाबेसेस दोबारा रन किया तो यहाँ पे वो स्कूल जो डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है, दैट विल नॉट कम। And this is how we open a database. You tell the server which database will use for the further statements. अगर आपको डेटाबेस ओपन करके उसके अंदर वर्किंग करनी है, for that we use command, use लिख के सीधा डेटाबेस का नाम लिख दो, सेमीकोलन लगाओ, एंटर दबाओ। So this will change the database and now we are open with the school database and whatever we want to do we can do here, right? Now this create table command जो भी हमने ऊपर की थी वो सारी वही है, टीचर अंडरस्कोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, all the things which we have done earlier in the example just we have covered up. तो ये ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसमें दो वेरिएशंस है, वन इज यू कैन राइट एवरीथिंग इन वन सिंगल लाइन, जैसे क्रिएट टेबल टीचर, यहीं पे ब्रैकेट लगा के टीचर आईडी टीचर कॉमा फर्स्ट नेम varchar 20 कॉमा लास्ट नेम, यू कैन राइट एवरीथिंग इन वन सिंगल लाइन ऑल्सो। Or what you can do is you write this much, press enter, you'll get this arrow symbol, next arrow bracket डालो और enter दबा दबा के हर कॉलम के बाद डाल दो। The moment you press semicolon at the end, तब ये आपकी कमांड खत्म हो जाएगी। This is also one way of writing. तो दोनों तरीके से right? Then ये मैं वो बात कर रहा है। हाँ जी बेटा। सर जो ये इंटीजर लिखना है, डेसिमल लिखना है, ये सारा कैपिटल वर्ड में लिखना है? नहीं, ये स्मॉल में लिख सकते हो आप। ओके सर। ठीक है, ये जो नाम आप दे रहे हो ना, जैसे टीचर अंडरस्कोर आईडी आपने नाम गिफ्ट दिया है, ये नाम आपको दिस ऑल्सो यू कैन राइट इन कैपिटल स्मॉल बोथ, बट ये ध्यान रखना कि अगर आपने कैपिटल लिखा है तो हर जगह जहाँ पे भी वो नाम यूज होगा वो कैपिटल में होगा। ठीक है, और जैसे टीचर में टी कैपिटल है, तो जहाँ पे भी आपको टीचर वर्ड यूज करना है, सेम टेबल यूज करना है, वहाँ पे टी कैपिटल ही डालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो कमांड्स है जैसे क्रिएट टेबल है, ये आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। ये जितने डेटा टाइप्स लिखने हैं ये सब कैपिटल स्मॉल दोनों में आ सकते हैं। ओके सर। राइट। नेक्स्ट कमांड इज शो टेबल। जैसे शो डेटाबेसेस था, इट विल शो द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, ऐसे शो टेबल्स लिखेंगे, एस यू हैव टू ऐड tables, semicolon will get the list of all the tables we have in that particular database. तो यहाँ पे एक ही बनाया अभी टीचर, तो टीचर ही शो हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट वैल्यूज की, जो हमारा एक ऑप्शन था कि हम पीछे
ये कंस्टेंट्स हर कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं। कंस्टेंट क्या क्या है और कैसे कैसे ऐड करने हैं। पहला कंस्टेंट है नॉट नल, राइट। अब ये वही टीचर टेबल कमांड, इट्स द सेम कमांड, क्रिएट टेबल टीचर, दिस सेम कमांड। हमने सिर्फ यहाँ पे एडिशन क्या किया, नॉट नल फर्स्ट नेम कॉलम में डाल दिया है। when you write not null here, not null में you need to have space between this space before not and after not, not और null के बीच में भी space होनी जरूरी है। and this also you can write in capital small both। तो इससे लिखने से क्या होगा कि ये जो कॉलम बन जाएगा फर्स्ट नेम, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। दैट मीन्स इन दिस कॉलम यू कैन नॉट लीव एनीथिंग ब्लैंक, आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। नॉट नल कंस्टेंट का ये काम है। तो अगर आप टेबल बना रहे हो, टेबल में यू वांट इन सम पर्टिकुलर कॉलम यू डोंट वांट टू लीव एनीथिंग ब्लैंक, वो खाली नहीं छोड़ना चाहते, कहीं पे भी वैल्यू आनी ही आनी है, तो आपको ये नॉट नल कंस्टेंट उस कॉलम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू कॉलम तो आपको दूसरे कॉलम के साथ भी नॉट नल लगाना। ठीक है, तो ये कंस्टेंट नॉट नल का फायदा है, that null value cannot come in that column, जिस कॉलम के आगे हमने ये लिखा है कॉमा से पहले it is written, so that means फर्स्ट नेम वाले कॉलम में नल वैल्यू नहीं आ सकती, राइट। सेकेंड कॉल कंस्टेंट इज डिफॉल्ट। जैसे मैं बात कर रहा था कि मान लो हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, बाय डिफॉल्ट सब में नल होता है, ठीक है। और अगर आपको वो डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करनी, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर इस कॉलम सैलरी के अंदर यूजर हैज नॉट एंटर्ड एनी वैल्यू तो क्या आएगा, ठीक है। उसके लिए ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। उसके लिए सिंपली यू राइट डिफॉल्ट एंड द वैल्यू यू वांट टू सेट, राइट। तो वैल्यू हमने यहाँ पे 40,000 कर दी। इसका मतलब सैलरी कॉलम में अगर क्रिएट टेबल के टाइम पे या इंसर्ट इनटू टाइम जब हम नई रो ऐड करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड से, उस टाइम पे अगर आपने खाली छोड़ा है सैलरी कॉलम में, कुछ भी नहीं लिखा, नल लिखा है, तो वो नल की जगह पे 40,000 जो है डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, राइट। So this is the use of default. If you want to use default somewhere, you can put it, ठीक है। और डिफॉल्ट की जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू में भी you have to keep in mind. Daman, any problem you have raising? You are raising hand. If you want to talk, you can talk. There is no problem. I have not muted anybody. और नहीं तो एक टेक्स्ट कर दो, आप चैट बॉक्स में डाल दो मैसेज, जो भी पूछना है। Shall I continue? चलो, I'll continue. If you have problem, just put a message in the chat box. So what we are doing here is default 40,000 we have set. So that means that in this column salary, if we are not entering any value, then automatically 40,000 will be added there. अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा था कि ये जो वैल्यू हम लिखते हैं, ये वैल्यू लिखते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है, लाइक यहाँ पे तो डेसिमल है, राइट। तो द डेटा टाइप इज डेसिमल। So and if the data type is integer, यहाँ पे गलती है, रॉन्ग मिस्टेक क्या है कि ये डेटा टाइप डेसिमल है तो डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक है कि 40,000.00 होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वैल्यू डालते हैं दैट शुड बी एज पर द डेटा टाइप दैट वी हैव एंटर्ड। ये डेसिमल है, इट शुड बी 40,000.00। अगर यहाँ इंटीजर होता तो विल राइट 40,000। अगर यहाँ पे कैर होता या वेर कैर होता तो जो भी वैल्यू आनी थी वो इन्वर्टेड कॉमास में आनी थी, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स वैल्यूज हमेशा ही इन्वर्टेड कॉमास में आती हैं। इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज बिना इन्वर्टेड कॉमा के हैं, बाकी सब इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे। डेट ऑल्सो, इफ यू वांट टू सेट अ डिफॉल्ट डेट, तो डेट के आगे डिफॉल्ट लिख के जो भी डेट सेट करनी है वो लिखो और उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, फाइन। So this you have to remember, this you have to keep in mind. All decimal values and all integer values will come without
inverted commas and all character values and date and all will come in inverted commas only. ठीक है, ये जब हम insert into command से रो में नई वैल्यू ऐड करते हैं तब भी ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, हम आगे करेंगे, I'll show you again there. ठीक है, तो इसके बाद हाँ ये देखो उन्होंने क्या किया, DESC कमांड हमने कल की थी, DESC होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल, DESC टीचर लिखा है तो टीचर टेबल की डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक ऑप्शन है डिफॉल्ट, कॉलम होता है डिफॉल्ट, इसमें वो बताता है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। बाय डिफॉल्ट सबकी नल है, इसकी 40,000 है, क्यों हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्ट 40,000 सेट की, ठीक है। सी 40,000.00 एक्सपेक्ट, राइट, डेसिमल वैल्यू थी ना तो 0.00 आनी है। So this is how we change the default value. Another constraint is check, हमने एक किया not null, एक किया हमने default, एक next है check। check वाला जो है वो सबसे important है। जैसे मैं एक बार पहले भी बताया था कि मान लो एक marks का कॉलम है, now I want the mark should always be less than 100, अगर यूजर 100 या 100 से कम मार्क्स ही होने चाहिए, अगर यूजर गलती से भी 100 से बड़ा नंबर ऐड करता है तो एक एरर मैसेज आना चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड हम कैसे लगा सकते हैं, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ दिस चेक कंस्ट्रेंट। तो व्हाट वी हैव डन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है इसमें हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है। चेक कंस्ट्रेंट में क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 110। तो इन दिस केस इस कॉलम डिपार्टमेंट नंबर में जो भी वैल्यू होगी इट शुड बी आइदर लेस देन 110 और इक्वल टू 110। यू कैन नॉट एंटर अ वैल्यू ग्रेटर देन 110, ठीक है। तो ये चेक कंस्टेंट है। चेक कंस्टेंट में जहाँ यहाँ पे बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, देखो चेक के बाद हम डिपार्टमेंट नंबर हमें दोबारा लिखना पड़ता है, कॉलम का नाम दोबारा लिखना पड़ता है, कई बार बच्चे ये स्किप कर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, चेक लिख के पुट अ ब्रैकेट, जिस कॉलम के आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हो वही कॉलम नेम यहाँ लिखो, लेस देन इक्वल टू, फिर जो वैल्यू देनी है और ब्रैकेट, ठीक है। देखो डिफॉल्ट के अंदर कोई ब्रैकेट नहीं आनी, डिफॉल्ट में आपने सीधा लिखना है। नॉट नल में कोई ब्रैकेट नहीं आएगी, डिफॉल्ट में कोई ब्रैकेट नहीं आएगी, चेक में आपको वैल्यू ब्रैकेट में, फाइन। तो ये कुछ चीजें हैं जो सिंटैक्स हैं, आपको ध्यान में रख के करना है काम। इसके बाद आते हैं हम की कंस्टेंट पे। की कंस्टेंट में क्या होगा कि एज वी discussed in the beginning also that we can set primary key in a table and it should be done, it's a healthy practice to have one primary key in a table ताकि डुप्लीकेसी ना हो सके। जो डेटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आती है नॉर्मली डेटाबेसेस में, वो चीज़ ना हो, तो हमें एक ऐसा कॉलम बनाना पड़ेगा जो प्राइमरी की हो। प्राइमरी की का मतलब है उस कॉलम के अंदर we cannot enter duplicate values, we cannot enter one number twice, one value twice, and moreover we cannot leave anything blank there, null value नहीं आ सकती। तो ये प्राइमरी की लगाने का तरीका है, सिंपल है। जिस कॉलम को प्राइमरी की लगाना है उसके डेटा टाइप के बाद सिंपली राइट प्राइमरी की, दैट्स इट। तो क्रिएट टेबल के टाइम पे आप इसको प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और इट इज़ ऑलवेज हेल्दी टू क्रिएट वन प्राइमरी की इन ए टेबल बिकॉज वो डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम हट जाती है उससे, ठीक है। कि अगर आप गलती से भी एक वैल्यू 2 बार एंटर करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट एन एरर मैसेज के बिकॉज ऑफ द प्राइमरी की यू कैन नॉट एंटर वन वैल्यू ट्वाइस हियर, ठीक है। तो सिंपल है, जस्ट जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है उसके डेटा टाइप के बाद प्राइमरी की कीवर्ड लिख दो। और ये प्राइमरी की डिफॉल्ट, नॉट नल, सारे आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, कैपिटल्स में भी लिख सकते हो, कैन बी राइट इन बोथ वेज, ठीक है। और जब हम DESC कमांड रन करेंगे, इफ यू राइट DESC, इस टेबल का नाम था टीचर टेबल, तो DESC टेबल लिख के कमांड रन करेंगे तो हमें यहाँ पे की वाले कॉलम में PRI लिखा मिलेगा।
PRI indicates that this particular column is a primary key in this table. Okay. Primary keys are not null. तो प्राइमरी की में आपको नॉट नल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें नॉट नल होता ही है कि नल वैल्यू तो वैसे नहीं आ सकती. तो वी डोंट नीड टू मेंशन दिस नॉट नल कंस्टेंट सेपरेटली, राइट. हाँ, ये भी एक चीज़ है कि जैसे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट लगाया है, अगर आपको इसके साथ नॉट नल भी करना है तो यहाँ स्पेस देके नॉट नल भी लिख सकते हैं, दो कंस्टेंट एक साथ भी डाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. कुछ नहीं करना है, डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस नॉट नल कॉमा. ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी की में नॉट नल ऐड करने की जरूरत नहीं है. प्राइमरी की इटसेल्फ कंटेन्स नॉट नल, तो दैट मींस नल तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो नॉट नल मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कंपोजिट की. अब कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर टेबल में we don't find any suitable column for primary key. मान लो हमारे पास टेबल में एक कॉलम है नेम ऑफ द स्टूडेंट, एक कॉलम है फादर्स नेम और एक कॉलम है मार्क्स. अब नेम तीन ही कॉलम है. अब नेम भी दो बच्चों का सेम हो सकता है, फादर्स नेम भी सेम हो सकता है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं. ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम प्राइमरी की कैसे लगाएं? तो ऐसे केसेस में हम प्राइमरी की को कंपोजिट की के फॉर्म में लगाते हैं. कंपोजिट की का मतलब है जब हम दो कॉलम्स को एक साथ प्राइमरी की बना दें, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट और फादर्स नेम को एक साथ प्राइमरी की बना दिया. उसमें क्या होगा कि इन केस नेम ऑफ द स्टूडेंट में कॉमन नाम है, डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, फादर्स नेम डिफरेंट होने चाहिए, और अगर फादर्स नेम सेम हो रहे हैं तो स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट डिफरेंट होने चाहिए. तो ऐसे भी हम लोग स्टैंडर्ड कर सकते हैं. So this particular standard is called as composite key when we have two columns combined together and they work as a primary key. अब इसको कमांड में कैसे लिखना है? कमांड में लिखने के लिए ये हम करते हैं सारा टेबल क्रिएट करने के लास्ट में. जैसे ये डिपार्टमेंट नंबर हो गया, कॉमा लगाया, पुट प्राइमरी की और ब्रैकेट में कौन कौन से दो कॉलम्स को आपने कंपोजिट बनाना है. जैसे टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ बना रहा है, तो टीचर आईडी कॉमा डेट ऑफ बर्थ लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दो. तो इससे हमारी कंपोजिट की क्रिएट हो जाएगी. उसमें ये दोनों कॉलम जो है वो कंपोजिट हो जाएंगे. इन केस टीचर आईडी कॉमन आता भी है तो डेट ऑफ बर्थ अलग होनी चाहिए, अगर डेट ऑफ बर्थ कॉमन आता है तो टीचर आईडी अलग होना चाहिए. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल यू कैन क्रिएट. वैसे हम लोग बात इसमें तो चलो हमारा जो एग्जांपल है उसमें टीचर आईडी यूनिक होना चाहिए, हर टीचर का अलग ही होगा. बट इन केस यू हैव ए सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता ही नहीं है कि कोई यूनिक कॉलम है, वहाँ पे हम ये प्रेफर करते हैं कंपोजिट की रिक्रिएट करना. ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन वे ऑफ एडिंग कंपोजिट की और प्राइमरी की, राइट. अच्छा, एक चीज यहाँ पे और रह गई, मैं वो भी बता देता हूँ. ये जो हमने पीछे प्राइमरी की क्रिएट करने का तरीका किया है, इसका एक और तरीका भी है, और तरीका यही है जैसे हमने यहाँ किया. यहाँ पे इफ यू वांट टू सेट ए प्राइमरी की, आप यहाँ पे इस कॉलम के आगे प्राइमरी की लिखने की बजाय आप लास्ट में भी लिख सकते हो. यू जस्ट हैव टू ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट में जिस कॉलम, अकेले कॉलम को, जैसे टीचर आईडी को ही प्राइमरी की बनाना है, write primary key bracket teacher id bracket closed. This is also one way of creating a primary key. ठीक है, ये दोनों तरीके से प्राइमरी की बन सकती है. इसके बाद आए जी हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट. अब हमने शुरू में एक बात की थी कि कई बार हम क्या करते हैं कि दो टेबल्स को आपस में लिंक भी कर सकते हैं. अब ये लिंकिंग कैसे होती है? लिंकिंग करने का मतलब ये है कि अगर हम एक टेबल के कॉलम को उठा के दूसरे टेबल में यूज कर ले तो क्या होगा, दोनों टेबल्स में एक कॉमन कॉलम हो जाएगा, राइट. उस कॉमन कॉलम की वजह से दोनों टेबल्स आपस में लिंक अप हो जाएंगे. तो
अगर हमने दोनों टेबल्स में से वैल्यू उठानी है, मान लो मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है टीचर, ठीक है, दोनों के पास कॉमन कॉलम है क्लास, टीचर वाले टेबल में भी क्लास कॉलम है और स्टूडेंट वाले टेबल में भी क्लास कॉलम है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे उन टीचर्स के नाम और स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो एक ही क्लास में है। अब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग टेबल में होंगी, टीचर के नाम टीचर वाले कॉलम टेबल में होगा और स्टूडेंट के नाम स्टूडेंट वाले टेबल में होंगे, दो अलग अलग टेबल्स हैं। अगर दोनों टेबल से वैल्यू उठानी है, then we need to link these two tables with the help of this referential integrity, right? और इसके लिए हम एक फॉरेन की कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेन की में क्या होता है कि एक टेबल में से मान लो टीचर वाला जो टेबल था उसकी क्लास जो है उसमें वो क्लास प्राइमरी की बन गई, दूसरे टेबल में वही कॉलम क्लास को स्टूडेंट वाले टेबल में वही क्लास कॉलम को हम ऐसे फॉरेन की यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन की में क्या होता है कि जिस कॉलम से हमने डेटा, जो कॉलम हमने पिक किया है उठाया है, सिमिलर वैल्यूज आप दूसरे टेबल के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल समझते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, दिस कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग ए फॉरेन की क्लॉज। इसको हम कैसे करते हैं, फॉरेन की क्लॉज के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स, एक हमारे पास है डिपार्टमेंट टेबल, एक हमारे पास है टीचर टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है और डिपार्टमेंट नेम नाम का कॉलम है। टीचर टेबल में हमारे पास टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर को हमने कॉमन बनाना है, ठीक है। नाम भले डिफरेंट है बट वी वांट सिमिलर कॉमन कॉलम्स फॉर बोथ द थिंग्स, बोथ द टेबल्स, जो वैल्यूज कॉमन चाहिए, फाइन। तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने डिपार्टमेंट नंबर ऐड किया जिसके अंदर वही वैल्यूज होंगी जो डिपार्टमेंट आईडी में है, तो इस डिपार्टमेंट नंबर को हम फॉरेन की बोलते हैं। बट ये फॉरेन की तभी होगी जब ये कॉलम जहाँ से हमने वैल्यू उठानी है वो प्राइमरी की हो दूसरे टेबल में। तो ये कंडीशन होती है कि प्राइमरी की ऑफ वन टेबल can become foreign key of another table and the values present in the primary key of one table can be used in the foreign key of the second table। तो इससे हमारे दोनों टेबल्स लिंक हो जाएंगे and in case we want department names as well as teacher ID both values, तो हम ये लिंकिंग की वजह से दोनों में से वैल्यूज उठा सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि जो फॉरेन की लगाई है हमने टेबल में, जैसे टीचर टेबल में हमने डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की लगाई है, तो ये फॉरेन की दूसरे टेबल में प्राइमरी की ही वैल्यूज यूज कर सके, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है, जैसे यहाँ पे तो नाम अलग अलग है ना, कई बार नाम भी सेम हो सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। नेम्स कैन आल्सो, नेम्स कैन आल्सो, काम तेरी इन्नी पैरवाई करनी है ना, तेन तेरे बच्चे तो खाना देंगे, कभी कभी मम्मी सदाई बंदा लगता है, तेरे बच्चे तेन तो खाना देंगे, ठीक है। ये कौन है, हरप्रीत सिंह, माइक ऑफ कर ले, बातें बाद में कर लेना, समझ ले बच्चा पहले। Okay, so let's just have a look how do we write this thing in command। फॉरेन की अगर हमने कमांड में लिखनी है तो कैसे लिखनी है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, सेम कॉलम की वैल्यूज हमने दूसरे टेबल टीचर में ऐड करनी है, तो यहाँ पे वो ऐसे फॉरेन की ऐड होगा, ठीक है। कंडीशन यही है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी होना चाहिए और यहाँ पे हम उसको ऐसे फॉरेन की यूज कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलर वैल्यूज विल बी कॉमन, और यहाँ पे क्योंकि वो प्राइमरी है तो प्राइमरी में वी नो
कि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, नल वैल्यू नहीं आ सकती, बट फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। तो मान लो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 112 है, तो यहाँ पे 112 दो बार आ सकता है रेफरेंस लिस्ट में फॉरेन की के अंदर। ठीक है, तो ये देखो इसको कमांड में कैसे लिखा, जैसे हमने क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट किया तो डिपार्टमेंट टेबल बनाया, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम बनाया, इंटीजर टाइप उसका डेटा टाइप है, उसको प्राइमरी की बना दिया। दूसरा टेबल भी क्रिएट किया, दूसरा कॉलम भी क्रिएट किया, डिपार्टमेंट नेम varchar 20 नॉट नल। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट हो गया। सेकंड टेबल जब हमने क्रिएट करना है टीचर टेबल, टीचर टेबल में टीचर आईडी उसकी अपनी प्राइमरी की है, बाकी कॉलम्स भी हमने क्रिएट किए एज के वही टेबल हमने उठाया जो पहले एग्जांपल में किया। और लास्ट में वी हैव टू ऐड दिस फॉरेन की लेके ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की बना रहे हैं, जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है इस टीचर टेबल के अंदर, वो ब्रैकेट में लिखा। फिर एक कीवर्ड लिखते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग में कई बार बच्चे गलती करते हैं, REFERENCES एस लगेगा साथ में। रेफरेंसेस लिख के, रेफरेंसेस का मतलब है किस कॉलम को हमने रेफर करना है एज प्राइमरी की, एज फॉरेन की। तो हमने किसको करना है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल, जस्ट राइट फॉरेन की, किस कॉलम को फॉरेन की बना रहे हो वो लिखो पहले, फिर रेफरेंसेस लिख के जिस टेबल में से हम फॉरेन की प्राइमरी की उठा रहे हैं वो टेबल का नाम और वो प्राइमरी की कॉलम, दोनों कॉलम आपका ब्रैकेट में आएगा, टेबल का नाम ब्रैकेट से पहले आएगा। तो इससे हमारे ये दोनों टेबल लिंक हो गए। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो जो वैल्यूज डाली गई हैं सेम वैल्यूज कैन बी यूज्ड इन दिस, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सेम वैल्यूज ही होनी चाहिए, आप सेम वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यूज नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन की है तो इसमें वही वैल्यूज यूज होंगी जो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर है। हाँ, वैल्यू रिपीट हो सकती है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो सकती है, यहाँ पे नहीं रिपीट हो सकती क्योंकि ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कर दिया। In case we want values from both the tables, so with the help of this foreign key, we can get those values. ठीक है, ये दोनों में से वैल्यूज कॉमनली उठानी कैसे है, उनकी भी कुछ कमांड है वो हम आगे करेंगे। सर हाँ जी बेटा। सर एक बार ये दोबारा बताना, फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर, ये वाली लाइन नीचे वाली, हाँ जी। इसमें देखो मैं ये लिख रहे हैं हम लोग के फॉरेन की लगा रहे हैं। फॉरेन की कंसेप्ट समझ में आया पहले क्या हुआ, ये फॉरेन की क्या होता है, यस सर, एक कॉलम, एक टेबल से दूसरे हाँ दूसरे टेबल की। दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज को अगर हम किसी और टेबल के अंदर भी यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे फॉरेन की तरह यूज कर सकते हैं। लिखना कैसे है, यस सर, फॉरेन की लिखा और जिस कॉलम के अंदर वो वैल्यू यूज करेंगे वो कॉलम का नाम ब्रैकेट के अंदर, फिर हमने लिखना है रेफरेंसेस, फिर हमने लिखना है दूसरा टेबल का नाम जिससे हमने वो वैल्यूज उठानी है, वो टेबल का नाम ब्रैकेट, उस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम था जिसके अंदर से हमने वैल्यूज उठानी है, डिपार्टमेंट आईडी से उठानी थी, डिपार्टमेंट आईडी लिखना है। तो इससे हमारे इस टेबल का कॉलम डिपार्टमेंट आईडी और इस टेबल का कॉलम डिपार्टमेंट नंबर दोनों लिंक हो गए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी ओके की सर, जो जो वैल्यूज होंगी वही डिपार्टमेंट नंबर में यूज होंगी, राइट। यस सर। और अगर हम DESC कमांड रन करें, ये टीचर टेबल में डाला है हमने फॉरेन की, तो इफ यू राइट DESC टीचर तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमने लिंक किया है वहाँ पे की के नीचे MUL लिखता है, मल्टी की है, मल्टी मतलब वही फॉरेन की लग गई। MUL indicates that this is the foreign key, means the values inside this particular column will be from some other table, दूसरे टेबल से वैल्यूज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये जो हमारा पहला टेबल था डिपार्टमेंट का जहाँ से हम वैल्यू उठा रहे हैं,
if any value from this table is deleted, so if any value in this column department ID is deleted or changed, तो क्या होगा? अब यहाँ पे हमने मान लो कि वैल्यू डिलीट कर दी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे भी डाली हुई है, तो अगर वहां से डिलीट कर दी तो यहाँ पे क्या होगा? पहली बात, वी कैन नॉट डिलीट इट। जो भी ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर एक कॉलम की वैल्यू दूसरे टेबल के किसी कॉलम में ऐसे फॉरेन की यूज हो रही हैं, so we cannot delete and we cannot update those values in case you want to delete it. By default settings में we cannot do it. कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में ना तो हम कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ना किसी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं. So if a department with a given value of department ID is deleted in the department table, then the corresponding tuples that contains the deleted value of the department attribute in the teacher table would be set to null. तो ये क्यों होगा? पहली बात, अगर हमने ये जो मैंने रेड मार्क किया ना, ये लाइन नहीं लिखी, तो वो डिलीट करने नहीं देगा, आपको एरर मैसेज आएगा, क्योंकि भाई हमने तो उसको एज ए रेफरेंस की यूज किया हुआ है, तो आप डिलीट नहीं कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है, यू वांट सच परमिशन, then we have to add this after this on delete set null. ठीक है, on delete set null से क्या होगा? अगर यहाँ से हमने कोई वैल्यू डिलीट की और वो सेम वैल्यू इस डिपार्टमेंट नंबर में यूज हो रही है, तो उस जगह पे नल आ जाएगा. यहाँ से वो वैल्यू डिलीट कर दी और यहाँ पे जहाँ पे वो वैल्यू दोबारा यूज हो रही है एज ए फॉरेन की कॉलम, वहां पे उस वैल्यू की जगह पे नल आ जाएगा. ये तभी होगा अगर हमने ये ऐड किया है तो. ऐसे ही इसके बाद एक और लाइन ऐड कर दी, ऑन अपडेट सेट नल. ऑन अपडेट सेट नल से क्या होगा? अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो, कोई भी वैल्यू को आपने चेंज कर दिया, जैसे मान लो डिपार्टमेंट आईडी में एक 100 डिपार्टमेंट आईडी थी, एक वैल्यू थी 100, हमने डिपार्टमेंट नंबर में दो जगह पे लगाई हुई है. ठीक है, तो मैं वो 100 को हटा के वहां पे 200 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे हमने 100 लगाया था वहां पे नल आ जाएगा, अगर ये ऐड किया है तो. अगर ये लाइन ऐड नहीं की है तो वो अपडेट नहीं होगी. ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखने वाली है कि ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन अपडेट सेट नल दोनों ऐड करने से वी कैन चेंज द वैल्यू इन दिस आईडी प्राइमरी की कॉलम, राइट. और अगर हम ऑन डिलीट सेट नल की जगह पे ऑन डिलीट कास्केड लिखते हैं,